रीजनल 3R यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक की कर्टन रेजर पत्रकार वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी उपस्थित हैं। साथ ही मैं सचिव आवास एवं शहरी कार्य श्री श्रीनिवास कातिकिताला का भी स्वागत करता हूं। आज की पत्रकार वार्ता का प्रारूप कुछ इस प्रकार से हुआ। 3R फोरम के लोगो और उसके बाद वेबसाइट के लोकार्पण के साथ पत्रकार वार्ता की शुरुआत होगी। तत्पश्चात सचिव आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसके संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। माननीय मंत्री जी आप लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद सवाल और जवाब। आपसे अनुरोध है कि अपना प्रश्न पूछने के पहले अपना और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। अब माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप लोगों का विमोचन करें। अब मैं अनुरोध करूंगा सचिव आवास और शहरी कार्य मंत्रालय श्री श्रीनिवास कातिकिताला जी से कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें। Thank you, Mojaji. I extend a very warm welcome to all of you who have joined us today for the curtain raiser for the 12th Regional 3R Circular Economy Forum in Asia and Pacific to be held between the 3rd and 5th March in Jaipur. It is a great honor that the Honorable Minister for Housing and Urban Affairs has graced today's curtain raiser event. We are ever grateful to you, sir, for your continued guidance and support. I extend a very warm welcome to the members of the print, electronic media, and all those who have joined even virtually. I would also like to welcome my colleagues from the Ministry of Environment and Forests who have been our partners in this endeavor. I also extend a warm welcome to the representatives of the states and the union territories who have joined us virtually from all over India. Friends, as you're aware, the Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and Pacific was launched by the United Nations Center for Regional Development, UNCRD, and the Government of Japan in November 2009. The objective of the forum is to provide strategic policy inputs
to government authorities in the Asia Pacific region for mainstreaming 3R, that is, reduce, reuse, recycle, and enhance circularity, and also to create collaborations between the 41 member nations. India has in the past hosted the 8th edition of this forum in the year 2018 at Indore. We are proud to host the 12th edition in 2025. In these years, India has taken giant strides in showcasing high-impact interventions under the Swachh Bharat mission and also leading a global movement led by the Honorable Prime Minister on Mission Life, that is lifestyle for environment. We would like to extend our sincere gratitude to the Honorable Chief Minister of Rajasthan and the Government of Rajasthan for supporting us in hosting this significant forum in the vibrant city of Jaipur. To ensure the success of this forum, we have been working diligently on the preparatory steps. Our ministry is working in close coordination with the Niti Aayog and 15 line ministries of the Government of India involved in the circular economy sector. Additionally, we have also reached out to all the states and the union territories to bring forward their case studies and best practices and participate in the forum. I am happy to inform all of you that the delegation details from almost all states and union territories have been received. To facilitate cross-learning, businesses and startups from India and Japan to collaborate, to showcase innovative ideas and solutions, and to support circularity and the 3R principles is the prime motive and intent of this forum. We also recognize the importance of community-driven initiatives and have hence invited selected self-help groups and non-governmental organizations, including those featured in our Honorable Prime Minister's Mann Ki Baat, to present their waste to wealth initiatives. These efforts highlight the power of grassroots entrepreneurship in promoting sustainability. The forum will also see participation from 38 Asia Pacific member countries. We will be hosting 500 delegates. Around 200 delegates will be international, including high-ranking ministers and ambassadors, government representatives, academics, and global experts. Additionally, we will be welcoming 300 delegates from India, representing all the states and union territories, including senior government officials such as city mayors, municipal commissioners, and so on. To enable the participation from India and internationally, we have also created a virtual forum which the Honorable Minister has just launched. This will make the platform more inclusive and enable thousands of students, researchers, academic institutions, and others to make the best use of this forum from various parts of the world and interact during these days. Around 120 speakers will be leading engaging discussions on 3R and the circular economy during these 3 days. The forum will host an international 3R trade and technology exhibition, providing a platform for over 40 domestic and Japanese industries and startups to showcase tech, solutions, and innovations. The delegates will also have an opportunity to go on technical field visits, visit key sustainability facilities in Jaipur, fostering knowledge exchange and inspiring actionable solutions for a circular economy. The forum this year will also see a dedicated India pavilion, showcasing India's remarkable initiatives and achievements in the 3R and circular economy space. The 15 ministries of the Government of India working on circular economy, the Niti Aayog will also be exhibiting the initiatives of key national missions, showcasing India's approach towards sustainable development. The forum will also serve as a hub for high-level engagement and interactive knowledge sharing sessions, such as roundtable discussions of ministers and ambassadors, policy dialogue, mayors dialogue, which will ensure mobilization towards international collaborative initiatives. The forum will also see rollout and signing of agreements under Cities 2.0, a Union Cabinet approved program to strengthen India's urban innovation, circular infrastructure, and to create an integrated
waste management framework in 18 cities. In addition, with multiple launches of knowledge products, we will be showcasing a compendium of the 100 best practices put together by the National Institute of Urban Affairs. In conclusion, I now request the Honorable Minister to guide us on how this forum is going to spearhead India's leadership and initiative in this important space. Thank you. जैसा हम जानते हैं कि विश्व भर में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और वस्तुओं का उपयोग करता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप में हो अथवा निर्माण करके उनको प्रोडक्ट के नाते उत्पाद जो बनते हैं उन उत्पाद का भी उपयोग करता है। और उस नाते से निरंतर वर्षों पहले अनुभव किया गया कि उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, उस नाते से जो वेस्ट है, उस वेस्ट का या जो चीज़ें अपनी आयु को पूरा कर लेती हैं उसका वेस्ट ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और इस बढ़ते हुए ऐसे वेस्ट मटेरियल के कारण से गंदगी और पोल्यूशन ये दोनों ही निर्माण होते हैं और ये कहीं ना कहीं अगेन मनुष्य के लिए ही हानिकारक होते हैं। तो हम अपनी चीज़ों का उपयोग करने के बाद हानिकारक वस्तुओं का अगर तुरंत निवारण नहीं करेंगे उस समस्या का, तो ये अपने आप में स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। उसी में से दुनिया के लोग भी और उसी में से ये जो रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी UN के माध्यम से इसका फॉर्म गठन किया गया और इसकी जो पहला फॉर्म की मीटिंग है वो टोक्यो में 2009 में हुई थी। उसी क्रम में बढ़ते हुए अब अपने यहाँ भारत में जयपुर के अंदर 12वीं रीजनल जो 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी का जो फॉरम इसकी मीटिंग ये हो रही है 3, 4, 5 मार्च और अभी 2025 3 दिन की ये मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के अंदर जैसा बताया है इसमें हमारे इस क्षेत्र के रीजनल क्षेत्र जो इसके UN के मेंबर इस नाते से हैं 25 कंट्रीज़ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 500 के आसपास डेलीगेट्स फॉरेन के भी होंगे, अपने देश के भी होंगे, वो उसके अंदर शामिल होंगे। 3 दिन तक वो अपना विचार करने वाले हैं। इसका आयोजन विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और साथ में ही यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट और जापान सरकार सब मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से, उनकी भागीदारी से ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी एक आर्थिक मॉडल है। संसाधनों का जो अधिकतम उपयोग हुआ उसके कारण से, जैसे मैंने बताया कि वेस्ट, उसका रिडक्शन और उसको रिसाइकिल करना, अर्थात रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना और रीयूज करना। दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज 3R, ताकि हम उसको एक इकोनॉमी के रूप में फिर से उपयोग कर सकें। तो उस आधार पर इस इकोनॉमी का जो उद्देश्य है, उस सारी सर्कुलर इकोनॉमी की यूज़ करने वाली जो सोसाइटी है उसके लिए रास्ते, उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए रिसर्च, इन सब विषयों पर विचार करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया भर में जहाँ जहाँ हो रही हैं उनका उपयोग एक दूसरे देश की जानकारी में आएगा तो उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक 3R और सर्कुलर इकोनॉमी पर डिक्लेरेशन, जिसको जयपुर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, 2025 से 2034 जो 10 वर्ष के लिए और ये डिक्लेरेशन होगी, इसको भी वहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। हमें गर्व है कि भारतवर्ष में जयपुर में ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। हमको एक और गर्व ये है कि अभी तक 11 पहले जो सेमिनार हुए हैं, जो समिट की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें भी इंदौर में पहले हो चुकी है और आज 12वीं जो है भारतवर्ष में हो रही है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ 2 बैठकें लगातार इस प्रकार से हो रही हैं और इसके लिए हम सब आयोजकों का भी धन्यवाद करते हैं। इस संबंध में हम जैसा जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत ही इस सर्कुलर इकोनॉमी के वो समर्थक रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में विभिन्न अवसरों पर 3R का जो जिक्र किया है उसके ऊपर जोर दिया है। सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि लोगों की भागीदारी भी इसमें होगी। तो बड़ा काम है
कुछ उद्योगपति मात्र इसको करना संभव नहीं हो पाएगा। यानी हर घर से लेकर के और बड़े बड़े जो हमारे उद्योग हैं उन सब में ये वेस्ट और वेस्ट के बाद पोल्यूशन होता है, तो इसमें सभी को भागीदारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको इस मूवमेंट में जुड़ना चाहिए और ये क्लाइमेट रिसिलिएंट बन सके, इस नाते से प्रधानमंत्री जी का एक ये दृष्टिकोण हमारे सामने सबके है। इसी विजन के साथ COP26 जो 2021 में हुआ, उसमें पंचामृत लक्ष्य जो लॉन्च किया गया 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भी सामने रखा गया। हरित ऊर्जा क्षमता यानी एनडीसीज का जो कमिटमेंट सब देशों ने दिया, वो हमारी अपनी कमिटमेंट है। ये अपने आप में कोई बाध्य नहीं है, ये अपने आप में स्वयं स्वीकृत अपने आप करने का एक विषय है, ताकि जो जो कमिटमेंट्स दुनिया भर के देशों ने किया है वो अपने आप उसको लागू करें। हमने इसी में स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे अपने डिपार्टमेंट से एक बड़ा अभियान लिया और उस अभियान के अंतर्गत देश भर के अंदर सबसे पहला जो शौचालयों का निर्माण हम कैसे कंट्रोल में रख सके, शहरी विकास और हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियाँ हमने अपनाई हैं। सॉलिड लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, CND वेस्ट मैनेजमेंट, इस दिशा में हमारे शहरी मिशनों का जो संचालन विभाग कर रहा है। इन अभ्यासों को अपनाकर शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में मजबूती मिली है, जिनका आधार स्वच्छ सर्वेक्षण से निरंतर असेसमेंट करके, और हम ध्यान करते हैं कि लगातार हम उन सारे प्रकल्पों में असेसमेंट के बाद कितना आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर हमारी इस पर नजर रहती है। 10 वर्ष पूरे जब होंगे तो अगला दशक, अभी जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं SBM के, यानी स्वच्छ भारत मिशन 2014 में इसको अपनाया गया था, 10 वर्ष पूरे हुए 2024 में। अभी 2025 से हमारा ध्यान बायो CNG, प्लास्टिक वेस्ट, RDF और लीगेसी वेस्ट डंप साइट्स, इसके रेमिडिएशन के ऊपर केंद्रित रहेगा, क्योंकि इससे भी हमारा सामाजिक और व्यावहारिक जीवन, इसके अंदर एक परिवर्तन लाने का हमारी कटिबद्धता, इसको हम पूरा कर पाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो विभिन्न इनिशिएटिव लिए गए हैं सर्कुलर इकोनॉमी स्ट्रेटेजी के, उसमें 11 की सेक्टर्स को और एक प्रकार से इसमें तय किया गया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, ई-वेस्ट, लिथियम आयन बैटरीज, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, इस प्रकार के 11 सेक्टर्स को अडॉप्ट किया गया है। अमृत 2 वाटर मैनेजमेंट, सिटी वाटर वेस्टेज जो प्लान है, सिटी वाटर बैलेंस प्लान, इसके ऊपर काम करते हुए वाटर को भी ट्रीट करके उसको दैनंदिन उपयोग के अंदर हम कैसे ला सकते हैं, पार्क में कैसे यूज कर सकते हैं, स्वच्छता में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इंडस्ट्री में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के पानी का भी एक बड़ा संकट डेली यूज की हमारी चीज़ है, और हमेशा जितना दबाव आबादी का है उतना ही, या उद्योग का भी दबाव है उतना ही पानी की आवश्यकता बढ़ रही है। तो जो पानी एक प्रकार से यूज कर लेते हैं, दोबारा उसको रीयूज करना, रिसाइकल करना, रीयूज करना, ये भी उसका एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से जो फॉरम है, इसका एक महत्व हमको इस नाते से ध्यान में आता है कि इसके अंदर जो नीतियाँ बने, जो इसमें दिशा निर्देश भी जारी किए जाए, भारत को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पर्यावरण से जुड़ी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं उसको बल देने के लिए ये सब काम इस फॉरम का हमको उपयोग होगा। और जैसा मैंने बताया कि 2018 में भी हमने काफ़ी चीज़ें उसमें से अडॉप्ट की थी, और 2025 में भी उसका हमको ये लाभ होगा। मित्रों, जैसा मैंने पहले बताया कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए जाएंगे, उसमें 25 देश और 500 प्रतिभागियों की बात मैंने बताई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें शहरों की यानी भागीदारी, 75 शहर, यानी देश तो ही है, 75 शहर जो हैं वो इस फॉरम का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं वे सभी शहर भी अपनी स्वीकृति प्रदान करें, ताकि उसमें जितने ज़्यादा आ पाएंगे उतना ही इसका लाभ होगा। हम उनका स्वागत करेंगे। इंडिया पेविलियन, इसकी बात बताई है हमारे सेक्रेटरी साहब ने। मंत्री और राजदूतों की जो राउंड टेबल चर्चाएँ होंगी, उसमें नीति का संवाद, और इसी साथ महापौर जो आएंगे उनकी भी अपनी जो मीटिंग्स होंगी, उसके नाते से
वक्ता विभिन्न सत्रों में 3 दिन चलने वाले सत्रों में संबोधन करेंगे। 120 वक्ता ये चर्चा करेंगे और भारत की 100 से अधिक हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं हैं, क्योंकि भारत देश के ऐतिहासिक एक महत्व है कि हम इन व्यवस्थाओं में आज जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा तो हर परिवार, हर गांव वो भी इन व्यवस्थाओं से प्राचीन काल में जुड़ा रहा है। ऐसी जो परंपराएं हैं उनका भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाते से वहाँ चर्चा होगी और जो अडॉप्टेबल होंगे वो सब अडॉप्ट करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये भी इसमें भाग लेंगे, अपनी अपनी पुस्तकें देंगे। वेस्ट टू वेल्थ, इस नाते से जो हमने नए नए आयाम खड़े किए हैं, वेस्ट टू वेल्थ कहें, कचरे से कंचन कहें, ये सारे विषय भी वहाँ पर प्रश्न किए जाएंगे कि वेस्ट में से कैसे हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। मानो उदाहरण ज़्यादा ना हो, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अगर आपने कभी चंडीगढ़ में रॉक गार्डन देखा हो तो निगराम सैनी उन्होंने वेस्ट मटेरियल से किस प्रकार की आकृतियाँ बनाई, एक गार्डन बन गया और टूरिज्म का एक सेंटर, नॉर्थ इंडिया का एक सेंटर बना हुआ है रॉक गार्डन। तो वेस्ट से क्या कुछ हो सकता है कि उसका उदाहरण छात्र ने आपको बताया है। मित्रों, हम इस मेजबानी करते हुए जैसा मैंने बताया कि अपने देश को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और दुनिया सारी कुल मिलाकर के इन विषयों पर एक दूसरे की तरफ देख रही है। दुनिया एक इसका ना ग्लोब इज ए विलेज नाउ। G20 में हमने देखा कि दुनिया के सभी जो ऐसे इश्यूज हैं उन इश्यूज के ऊपर इकट्ठे बैठ कर चर्चा करते हैं। उसी का एक फॉर्म ये है कि दुनिया के सब देश बैठ कर चर्चा करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी धारणा है, ये इससे मजबूत होगी। और इसमें G20 में भी इन बातों पर जोर दिया गया था, इसमें भी उन बातों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सफल आयोजन निश्चित रूप से इसका प्रतिफल निकलेगा और सब दुनिया को, समाज को, देश को पता लगेगा। और सफलता के लिए मैं पुनः जो विभाग, जो जापान जैसे देश और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN के जो हमारे या UN की जो हमारी संस्थाएं वो उसमें सहयोग कर रही हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो कम तभी रखा जा सकता है जब हम अपनी जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है पोल्यूशन, उस रिक्वायरमेंट को कम करें, उसका उपयोग उन चीज़ों का कम करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। अब जैसे हमने कम करने के लिए दिल्ली जैसे प्रदेश में मेट्रो शुरू हुई 2005 में, आज लगभग 300 किलोमीटर से ऊपर केवल दिल्ली NCR के अंदर और मेट्रो का संचालन हुआ। आप कल्पना करिए कि अगर मेट्रो नहीं होती और यहाँ वाहन उसी प्रकार से जैसे बढ़ते रहते, क्योंकि आई नो द सीन ऑफ नॉट लेटर देन 1970 1970 में दिल्ली देखी और उस समय इतने वाहन हो जाते थे, उस समय निकलना मुश्किल होता था। और आज अगर मेट्रो नहीं तो क्या स्थिति होती, तो इसको रिड्यूस करने के लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान हुआ। ऐसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, अब ये लगातार प्रगति कंस्ट्रक्शन वर्क में होती है तो उसको उस समय रोका तो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क को थ्रू आउट नहीं रोक सकते। अगर थ्रू आउट रोकेंगे तो कल को फिर इन मकानों की जरूरत पड़ती है, जो बाकी जो जरूरत पड़ती है वो कहाँ से लाएंगे हम। इसी प्रकार हमारे व्हीकल्स हैं, और व्हीकल्स में यानी जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, बसेस बढ़ती जा रही हैं, रिक्शाज बढ़ रहे हैं, ताकि हम डीजल की, पेट्रोल की खपत कम कर सकें। वो कम करके भी सारा विषय फिर भी इस लेवल पर आता ही है। अब एकदम ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते, हमें कुछ समय दे करके इन चीज़ों को रिफॉर्म करना पड़ता है और उसका परिवर्तन करना पड़ता है, और वो बहुत कम हो रहा है। आगे चल करके और जो पोल्यूशन जो एनिमेटिक जो होता है निकलता, उसके कौन कौन से कामों को कम कर सकते हैं। जहाँ तक पराली का विषय है, बहुत ये दिल्ली में शोर मचता है कि पंजाब हरियाणा की पराली, ठीक है, उस पराली का भी 10-15% इफेक्ट है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम सरकारें कर रही हैं, प्रदेश की सरकारें, कि किसान पराली को ना जलाए। उस पराली को कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसके पैलेट बनाते हैं, पैलेट बना करके उसको रीयूज़ करते हैं, उसको एथेनॉल बनाते हैं, काफ़ी कम हुआ है। ये चीज़ें साइड बाय साइड, लंबी लकीर को छोटी कैसे करना और अच्छी चीज़ों की छोटी लकीर को बड़ी कैसे करना, ये पैदल चलेगा, फिर भी इस पर काफ़ी कंट्रोल है।